Hello students, today we will discuss about classification and properties of magnetic materials. When a substance is placed in a non-uniform magnetic field, it generally experiences a force. जब भी हम किसी सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सपीरियंस होता है एक फोर्स का. The force may be in the direction of increasing magnetic field for some substances and in the direction of decreasing for others, irrespective of the field direction. That means जो डायरेक्शन है यहाँ फोर्स की किसी भी गिवन सब्सटेंस पे वो डिपेंड करेगी ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज पे, नॉट ऑन द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये डिपेंड करेगी फील्ड ग्रेडियंट पे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डायरेक्शन पे. कुछ सब्सटेंस एक्सपीरियंस करते हैं फीबल फोर्स को while some other experience a strong force. Thus various substances differ in their behavior when they are placed in a non-uniform magnetic field. On the basis of these observations, various substances are classified into three categories: diamagnetic materials, paramagnetic materials, and ferromagnetic materials. The substances which are feebly repelled by magnet is known as diamagnetic material. Second, the substances which are feebly attracted towards the region of stronger magnetic field are called paramagnetic material. And finally, third one are that substances which are strongly attractive towards the region of stronger magnetic field are known as ferromagnetic substances. इनका अलग अलग डिस्कस करेंगे हम. फर्स्ट डिस्कस करेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, देन प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल. फर्स्ट, diamagnetic material are those which are feebly repelled by the stronger part of magnetic field when placed in a non-uniform magnetic field. जो stronger part है magnetic field का, वहाँ से repelled होते हैं जो material, उनको कहते हैं diamagnetic material. Examples are antimony, bismuth, copper, zinc, silver, gold, water, hydrogen, etc. are the examples of diamagnetic material. Now the properties of diamagnetic materials. First is these substances when placed in a magnetizing field acquire feeble magnetization in a direction opposite to that of the given magnetizing field. Second is when freely suspended in a uniform magnetic field, these substances rotate till their longest axis becomes normal to the magnetic field. यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है. अगर हम एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को यहाँ फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो जो ये सब्सटेंस है इसके लॉन्गेस्ट एक्सिस को ये नॉर्मल टू द फील्ड करेगा. फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है तो ये सब्सटेंस जो इसकी लॉन्गेस्ट एक्सिस है उसको यहाँ सेट कर देगा. ये आइडेंटिफिकेशन है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की. जब हम इनको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हैं फ्रीली तो ये अपने लॉन्गेस्ट एक्सिस को नॉर्मल टू द फील्ड सेट करते हैं. Second, in a non-uniform magnetic field, diamagnetic materials moves from stronger to weaker part of the field. In the figure, this is a watch glass which rests on the pole pieces. Take a small quantity of diamagnetic powder. Now the pole pieces are quite closer to each other, so magnetic field here is stronger than the pole pieces. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस गैप में, क्योंकि ये दोनों पोल्स एक दूसरे के क्लोज हैं तो यहाँ सेंटर पे जो गैप है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपैरिजन टू edges of the pole pieces. Now
डायामैग्नेटिक पाउडर है तो इनकी हमने प्रॉपर्टी स्टडी की है। डायामैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं वो स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से डायामैग्नेटिक मटेरियल कहाँ जाएंगे, पोल पीसेस के एजेस के टुवर्ड्स जाएंगे। सेकंड हमने क्या किया, पोल पीसेस को अगर हमने मूव कर दिया, अलग कर दिया, तो यहाँ पर जो सेंटर है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गई एज कंपैरिजन टू द पोल पीसेस। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या करेंगे, यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से सेंटर पे आएंगे, सेंटर पे हमें यहाँ ये हम्प दिखाई देगा। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ स्ट्रॉन्ग थी सेंटर पे, तो यहाँ पर हमें डिप्रेशन दिखाई दिया, मूव हो गया इधर डायामैग्नेटिक पाउडर, और यहाँ पर जो डायामैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है, तो डायामैग्नेटिक पाउडर यहाँ पर सारा कोलेक्ट हो गया और हमें हम्प दिखाई दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इफ डायामैग्नेटिक लिक्विड is filled in a narrow U-tube and one limb is placed in between the pole pieces of an electromagnet, the liquid level depress in the limb when the field is switched on। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, अगर हमने U शेप की एक ट्यूब ली है और इसमें डायामैग्नेटिक लिक्विड फिल किया है, और अगर इसका हम वन लिम्ब एक पोल पीसेस के बीच में रखते हैं तो यहाँ पर ये जो लिक्विड है डिप्रेस हो जाएगा। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल। सेकंड द फिफ्थ वन इज concentration of magnetic lines of induction inside a diamagnetic material is smaller than that of outside it। यहाँ अगर हम ये नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं किसी मैग्नेट के, डायामैग्नेटिक मटेरियल लिया है, तो ये जो लाइंस हैं ये डायामैग्नेटिक मटेरियल के जो अंदर कंसंट्रेशन है वो स्मॉल होगी एज कंपैरिजन टू आउटसाइड इट। नेक्स्ट, relative permeability of a diamagnetic material is slightly less than 1 but never equal to 0 or negative। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की रिलेटिव परमेबिलिटी है वो लेस देन 1 होगी, बट ना ही तो नेगेटिव हो सकती है और ना ही 0। Then the magnetic susceptibility of diamagnetic materials is always negative एंड वेरी स्मॉल। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। द लास्ट वन इज मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो मैग्नेटिक बिहेवियर है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का ये डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। Paramagnetic materials are those which are feebly attracted by the stronger part of the magnetic field when placed in a non-uniform magnetic field। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं डायामैग्नेटिक से। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स रिपेल होते हैं स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड से, बट जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं वो अट्रैक्ट होते हैं बाय द स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड when placed in a non-uniform magnetic field। Examples are platinum, aluminium, chromium, ground glass, nickel, oxygen are the examples of paramagnetic materials। Now the properties of paramagnetic materials, properties भी सेम बिल्कुल अपोजिट होंगी। जो हमने डाया के केस में पढ़ा है उससे अपोजिट हम यहाँ पैरा के केस में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, these substances when placed in a magnetic field acquire a feeble magnetization in the same direction as that of external magnetic field। The magnetization lasts so long as magnetizing field is present। मैग्नेटाइजिंग फील्ड जब तक प्रेजेंट रहती है उस सब्सटेंस में मैग्नेटाइजेशन तब तक रहती है। सेकंड इज when freely suspended in uniform magnetic field these substances rotate till their longest axis parallel to the field। डायामैग्नेटिक में हमने क्या पढ़ा था, जब हम उन सब्सटेंसेस को फ्रीली सस्पेंड करते हैं
तो वो अपनी लॉन्गेस्ट एक्सिस को परपेंडिकुलर टू द फील्ड सेट करते हैं, और ये क्या करते हैं, अपनी लॉन्गेस्ट एक्सिस को पैरेलल टू द फील्ड सेट करते हैं। यहाँ देखिए, अगर हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल को सस्पेंड किया तो इन्होंने अपनी लॉन्गेस्ट एक्सिस को फील्ड के पैरेलल सेट कर लिया। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, in a non-uniform magnetic field, the paramagnetic materials moves from weaker to stronger part of the field. डायामैग्नेटिक क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गर टू वीकर मूव करते हैं, ये मूव करेंगे वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट। यहाँ अगर हमने एक वॉच ग्लास ली, उसके ऊपर पाउडर लिया, पैरामैग्नेटिक पाउडर, जब हमारे पॉल पीसेस क्रॉस हैं तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपैरिजन टू नियर द पॉल पीसेस। तो हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है सारा कलेक्ट हो जाएगा सेंटर पे, क्योंकि ये मूव करेगा वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट, तो यहाँ हमें हम दिखाई देगा। बट अगर हम इन पॉल पीसेस को अपार्ट कर दें, अलग अलग कर दें थोड़ा दूर, तो क्या होगा, ये जो पैरामैग्नेटिक पाउडर है ये यहाँ से वीकर से स्ट्रॉन्गर पार्ट में जाएगा, क्योंकि अब यहाँ सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कम हो गई, और नियर द पॉल पीसेस जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो यहाँ वीकर से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ मूव करेगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। द नेक्स्ट इज, if a paramagnetic liquid is filled in a narrow U-tube and one limb is placed in between the pole pieces of an electromagnet, the liquid level rise in the limb when the field is switched on. Opposite है, वहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर डिप्रेस हो गया था जो लिक्विड है, यहाँ क्या होगा, राइज होगा जब हम एक लिम्ब को पॉल पीसेस के बीच में रखते हैं। Fifth, the concentration of magnetic lines of induction inside a paramagnetic material is slightly greater than outside it. यहाँ पर क्या है, वहाँ डायामैग्नेटिक के केस में कंसंट्रेशन इनसाइड कम थी, आउटसाइड ज़्यादा थी। यहाँ क्या है, अपोजिट है, इनसाइड ज़्यादा है और आउटसाइड कंसंट्रेशन क्या है, कम है। Now the relative permeability of paramagnetic material is slightly greater than 1. डायामैग्नेटिक की क्या थी, लेस देन 1 थी, बट नेगेटिव या 0 नहीं थी। और जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की इज़ वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव, और डायामैग्नेटिक की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव होती है। जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, बट जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नाउ द नेक्स्ट वन इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। Ferromagnetic materials are those which are strongly attracted by the stronger part of the magnetic field when placed in a non-uniform magnetic field. जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस थे उनसे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो फेरो की होती हैं। ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं, वो फीबली अट्रैक्ट होते थे, ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं by the strong part of the magnetic field. Examples हैं iron, steel, cobalt are the examples of ferromagnetic materials. अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, these substances when placed in a magnetizing field acquire magnetization in the same direction as the given magnetizing field. Magnetization of the material is easily visible and pole formation takes place. सेम है पैरा की जगह जैसे थी, बट यहाँ ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। जो मैग्नेटाइजेशन एक्वायर होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत विजिबल होती है और पोल फॉर्मेशन भी हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट इज व्हेन अ रोड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल
is freely suspended in a uniform magnetic field, the rod align its length parallel to the external magnetic field. यही पैरा के केस में था. यहाँ पर वो रॉड थोड़ा स्ट्रांगली अलाइन कर लेगी अपने आप को to the parallel of external magnetic field. Next is, in a non-uniform magnetic field, a ferromagnetic material moves from weaker to stronger part of the field. यही हमने पैरा के केस में स्टडी किया है. The next, relative permeability of ferromagnetic materials is very large. It is of the order of few hundreds or even thousand for some material. बट पैरा के केस में हमने ग्रेटर देन 1 स्टडी किया था रिलेटिव परमेबिलिटी को. And the magnetic susceptibility of these substances is positive and very large. The last is the ferromagnetic property of a material falls with rise of temperature. At a particular temperature called Curie temperature, ferromagnetic material loses its ferromagnetic behavior and changes into paramagnetic materials. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं. क्यूरी टेम्परेचर पे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो चेंज हो जाते हैं किसमें? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में. हर मटेरियल के लिए क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू डिफरेंट होती है. अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू 1000 डिग्री सेल्सियस है. This is all about the properties of diamagnetic material, paramagnetic material and ferromagnetic material. Diamagnetic material क्या होते हैं? जो रिपेल होते हैं स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो अट्रैक्ट होते हैं फीबली अट्रैक्टेड बाय द स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय द strongest part of the magnetic field. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंज हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में एक सर्टेन टेम्परेचर पे कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर. द नेक्स्ट टॉपिक इज definitions of some terms related with magnetism and their relations. कुछ टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. लाइक मैग्नेटिक इंटेंसिटी H से डिनोट करते हैं. क्या होता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट is defined as the number of magnetic lines of force passing through unit area held perpendicular to these lines of force due to free current I in the winding. किससे डिनोट करते हैं हम? H से डिनोट करते हैं. एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर टर्न्स पर मीटर. यहाँ N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स. I करंट है जो वाइंडिंग में फ्लो कर रहा है और L क्या है? लेंथ है. It is vector and its direction at any point is along the tangent to the line of force at that point. Magnetic intensity is equal to Ni by L. Next is magnetic permeability. mu से denote करेंगे. Magnetic permeability of medium is measure of the extent to which the lines of force can penetrate through each. एक्सटेंट को मेजर करता है लाइंस ऑफ फोर्स पेनिट्रेट करती हैं जो मटेरियल को. इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी P इन ए गिवन मीडियम टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी H. म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? B by H, where B is the flux density and H is the magnetic intensity. Mu is equal to B by H. Next is relative permeability, mu R. Relative permeability mu R of a medium is defined as the ratio of magnetic permeability mu of the medium to the magnetic permeability mu node of free space. Mu R की वैल्यू क्या हो जाएगी? mu by mu node. ये डायमेंशन लेस है और यूनिट लेस है क्योंकि ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी है. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. डिनोट करेंगे XIM से. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल
is a measure of the ease with which it can magnetized by a magnetizing field. कितनी जल्दी कोई मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो जाता है उसको मेजर करती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. It is the ratio of intensity of magnetization I to magnetic intensity H. Xi m क्या हो जाएगा I by H. ये भी डायमेंशनलेस है और यूनिट लेस है. अगर हम रिलेशन देखें among B, H and I, then the total magnetic induction at a point in a specimen in a Rowland ring is given by mu node Ni by L plus mu node Is by L. Is by L is equal to I, intensity of magnetization, and Ni by L is equal to H. यहाँ अगर हम वैल्यू रखते हैं B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास म्यू नोड H प्लस म्यू नोड I. In vector notation B is equal to B vector is equal to mu node H vector plus mu node I vector. Mu node common ले लेंगे H plus I. Now the relation between relative permeability mu R and magnetic susceptibility psi m. ये रिलेशन हमें पता है B is equal to mu node H plus mu node I. दोनों साइड अगर हम H से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा B by H is equal to mu node H से H कैंसिल mu node I by H. B by H आपको पता है अभी हमने स्टडी किया है ये होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड I by H is equal to मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. वैल्यूज पुट करेंगे म्यू इज इक्वल टू म्यू नोड प्लस म्यू नोड जाई एम. म्यू नोड यहाँ से कॉमन 1 प्लस जाई एम. म्यू नोड को यहाँ ले आएंगे म्यू बाय म्यू नोड इज इक्वल टू म्यू आर रिलेटिव permeability. Then mu r is equal to 1 plus xi m. This is the relation between relative permeability and magnetic susceptibility. So this is all about classification and properties of magnetic materials and definitions of some terms related with magnetization. Thank you.